Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, you are face to face with Mr. H.D. Sharma, and today we are going to explain CBSE Board Class 12th 5th chapter of Flamingo. Name of the chapter is Indigo. Indigo means नील की खेती, and the writer of the lesson is Louis Fisher. Students, Louis Fisher was born in 1896 in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 to 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. It means this chapter, 5th Indigo, is extracted from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Mahatma Gandhi. There are many books written on Mahatma Gandhi, but this book named The Life of Mahatma Gandhi was the best one that ever written on Mahatma Gandhi. So this chapter, Flamingo, is part of that book, The Life of Mahatma Gandhi, written by Louis Fisher, a volunteer or writer of Philadelphia. Students, this story is starting in December 1916 when Gandhiji went to Lucknow to attend the annual convention of the Indian National Congress, where he met a peasant of Champaran named Rajkumar Shukla. And in the chapter, how Rajkumar Shukla convinced Mahatma Gandhi to go with him, and how Mahatma Gandhi fought there the battle of Champaran, or fought against injustice of poor peasants, poor farmers. The story is very important, very interesting also, and this is known as Fight of Champaran. You can say Champaran is the place in Bihar, and this is you can also say the beginning of freedom fight. Champaran is the place that convinced the people of India that we can be free and we can get our rights from the Britishers. So students, let us see Indigo, paragraph wise, line by line. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of British. It was in 1917. यहाँ राइटर कहता है कि व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी 1942, जब मैं प्रथम बार 1942 में गांधी जी से मिला था उनके आश्रम में सेवाग्राम में सेंट्रल इंडिया में मध्य भारत में, जब मैं 1942 में महात्मा गांधी से पहली बार उनके आश्रम सेवाग्राम में मिला था, ही सेड, उसने कहा, आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि मैं तुम्हें बताऊंगा ये कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश, कि मैंने डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश मीन्स ब्रिटिश को यहाँ से प्रस्थान करने के लिए मैं डिसाइड किया, निश्चित किया. इट वाज इन 1917. ये 1917 की बात है. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ महात्मा गांधी ये कहना चाहते हैं कि चंपारण एपिसोड
1917 में हुआ था। तो चंपारण एपिसोड ही वो एपिसोड था जिसने गांधी जी को यह डिसाइड करने के लिए मोटिवेट किया कि वो ब्रिटिश को डिपार्च कर सकते हैं यहाँ से। ही हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो 1916 में भारतीय कांग्रेस के कन्वेंशन मीन्स होता है सम्मेलन, एनुअल मीन्स होता है वार्षिक। तो दिसंबर 1916 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। कहाँ? इन लखनऊ में। देयर वर 2301 डेलीगेट्स मीन्स होता है प्रतिनिधि, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। यानी उस कन्वेंशन में, उस सम्मेलन में 2301 तो प्रतिनिधि थे। डेलीगेट्स मीन्स होता है प्रतिनिधि, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे विजिटर्स भी थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, और इस प्रोसीडिंग्स के दौरान गांधी जी रिकाउंटेड, गांधी जी ने सुनाया। रिकाउंटेड मीन्स होता है सुनाना, बयान करना। ए पीजेंट, क्या बताया, क्या सुनाया उसने कि ए पीजेंट, एक किसान, केम अप टू मी, वो मेरे पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जैसे भारत के दूसरे किसान होते हैं, पुअर एंड इमेशिएटेड। पुअर मीन्स होता है गरीब, और इमेशिएटेड मीन्स होता है कमज़ोर, दुर्बल। तो अन्य जैसे भारत के कमज़ोर और दुर्बल किसान आते मेरे पास, तो एक किसान मेरे पास आया जो गरीब था और कमज़ोर था, एंड सेड, उसने कहा आई एम राजकुमार शुक्ला। और क्या कहा उसने कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। यानी मैं चाहता हूँ, गांधी जी से कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चंपारण चलो। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। अब देखिए क्या कहता है राइटर कहता है कि गांधी जी ने उस स्थान के बारे में कभी नहीं सुना। किस स्थान के बारे में? चंपारण के बारे में। गांधी जी ने चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था। इट वॉज, कहाँ था ये? इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टॉवरिंग हिमालयाज। जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों की फुट हिल्स का मतलब होता है पैरों में एक तरह से, यानी पहाड़ियों के नीचे। तो हिमालय की पहाड़ियों के नीचे, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास पहाड़ियों की नीचे स्थित था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट, अंडर माने नीचे या अनुसार, एन एंशियंट मीन्स प्राचीन, और रीअरेंजमेंट मीन्स होता है एक तरह से वसीयत कह सकते हैं या समझौता। तो एक प्राचीन समझौते के अनुसार द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। एक प्राचीन समझौते के अनुसार जो चंपारण के किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। वो शेयर क्रॉपर्स का मतलब क्या होता है? शेयर क्रॉपर्स का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि वो खेती करते थे, हार्डवर्क करते थे, लेकिन भूमि उनकी अपनी नहीं होती थी। भूमि किसकी होती थी? भूमि होती थी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनकी। और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उसमें जो वो खेती करते थे उसमें से कुछ हिस्सा उनको देते थे। शेयर क्रॉपर्स, शेयर यानी जो क्रॉप उसमें होती थी उसको वो शेयर करते थे, उनको शेयर क्रॉपर्स कहा जाता था। जैसे मान लीजिए एक बीघा खेत में ईख करके हमने 10,000 रुपये की फसल उसमें उगाई है, तो 10,000 रुपये में से उसको थोड़ा सा हिस्सा मिल जाए। अब वो कितना हिस्सा मिलेगा वो डिसाइड होता था, उनके बीच में डीलिंग होती थी। तो वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से ही एक था। यानी राजकुमार शुक्ला भी शेयर क्रॉपर था। ही वाज इलिटरेट बट रेजुलेट। देखिए क्या कहा है इस राइटर ने? ही वाज इलिटरेट, वो क्या था? अनपढ़ था, बट रेजुलेट था। रेजुलेट मीन्स दृढ़ निश्चयी, कृत संकल्प या संकल्पी या स्थिर रहने वाला व्यक्ति था। ही हैड कम टू द, अब देखिए वो क्यों आया था? ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वो कांग्रेस सेशन में आया था टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए, अबाउट इनजस्टिस। इनजस्टिस मीन्स अन्याय, द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वह कांग्रेस के सम्मेलन में बिहार में जो जमींदारी प्रथा का, इनजस्टिस सिस्टम में, लैंडलॉर्ड सिस्टम मीन्स जमींदारी प्रथा का, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, जो बिहार में जमींदारी प्रथा का जो अन्याय था उसकी शिकायत करने के लिए आया था। एंड समबॉडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी, और शायद उसे किसी ने कहा था कि इस बारे में आप गांधी जी से बात करिए। जो अन्याय था जमींदार प्रथा का, जमींदारी प्रथा का अन्याय। जमींदारी प्रथा क्या थी कि जमींदार होते थे, उनकी ज़मीन होती थी, वो खुद तो खेती करते नहीं थे, किसानों से खेती कराते थे और बदले में उनको थोड़ा बहुत कुछ देते थे, और नहीं तो वो सारी फसल अपने आप रख लेते थे। और वो चूँकि वो बेचारे गरीब होते थे और अनपढ़ भी होते थे, इसलिए उनसे उल्टे सीधे वो सिग्नेचर करा करके और
उनको हमेशा डेप्ट में ही रखते थे और सारी क्रॉप वो खुद हड़प जाते थे। तो इस तरह की स्थिति थी उनकी, बहुत दयनीय स्थिति थी। तो चूँकि उनका बहुत बुरी तरह से शोषण हो रहा था, तो वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चल करके उस अन्याय को देखे। तो वो इसी कंप्लेन करने के लिए आए थे। ऐसा उस किसान को किसी ने बताया था कि उन्हें गांधी जी से बात करनी चाहिए। चलिए, गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। क्या हुआ, गांधी जी ने उसको बताया कि उसका एक कानपुर में अपॉइंटमेंट है, पहले से यानी तय है प्रोग्राम। एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के दूसरे देशों में भी उसको जाना है, इसलिए उसके पास समय नहीं है। शुक्ला, लेकिन क्या हुआ, शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला जहाँ भी वो जाते थे महात्मा गांधी, शुक्ला जी उनके साथ साथ ही जाते थे। देखिए, इसीलिए उस पीजेंट को क्या कहा, रिजोल्यूट कहा है। वो अपनी बात पे अड़िग है। वो गांधी जी को कह रहा है कि एक बार आप चलिए, और गांधी जी ने बताया कि उसके पास समय नहीं है, वो फिर भी गांधी जी के साथ साथ चल रहे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर अहमदाबाद के पास में गांधी जी अपने आश्रम लौट आते हैं। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। अब शुक्ला आश्रम में भी उनके साथ साथ आते हैं, यानी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है शुक्ला। राजकुमार शुक्ला लगातार उनके साथ साथ चल रहा है। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड। सप्ताहों तक उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, लगातार उनके साथ रहा, उनके चारों तरफ मंडराता रहा। फिक्स डेट ही बेग्ड। उसने प्रार्थना की कि एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप एक डेट फिक्स कर दीजिए, आप जो भी डेट फिक्स करेंगे चंपारण आने की, हम उसको फॉलो करेंगे, उसी में आपको जो है डिस्टर्ब उससे पहले नहीं करेंगे। तो इम्प्रेस बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी। तो इम्प्रेस माने प्रभावित होकर, शेयर क्रॉपर्स माने शेयर क्रॉपर्स की, इम्प्रेस मीन्स प्रभावित होकर के, शेयर क्रॉपर्स की टेनेसिटी। स्टूडेंट्स, टेनेसिटी मीन्स होता है दृढ़ता और लगन। तो शेयर क्रॉपर्स की यानी जो किसान थे वो गरीब, उन किसानों की लगन और उनकी कहानी से प्रभावित होकर के गांधी जी ने कहा, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कि मैं इन तारीख में कलकत्ता में आऊँगा। कम एंड मीट मी, टेक मी फ्रॉम देयर। आप वहाँ आइए और वहाँ से आकर के मुझे ले लीजिए। मंथ्स पास, स्टूडेंट्स क्या कहता है, मंथ्स पास, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चीज एट द अपॉइंटेड स्पॉट्स इन कोलकाता। अब महीनों बीत गए, लेकिन जो शुक्ला था वो अपने सिटिंग ऑन हॉन्चीज, सिटिंग ऑन हॉन्चीज मीन्स होता है, हॉन्चीज मीन्स होता है कूल्हे, पृष्ठभाग। तो शुक्ला यानी वेट करता रहा और अपने पृष्ठभाग पर बैठा रहा। कब तक, जब तक कि वो समय नहीं पहुंचा। तो अपॉइंटेड आवर्स तक, जब तक वो समय नहीं आया तब तक वो उनकी प्रतीक्षा करता रहा। तो स्टूडेंट्स वो वेट करता रहा अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता वैन, जब तक कि कलकत्ता वैन गांधी जी अराइव्ड, जब गांधी वहाँ पहुँचे। तो गांधी जी की कलकत्ता में वेट करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। अब गांधी जी पहुँच जाते हैं तो क्या किया, ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। तब तक उसने गांधी जी की प्रतीक्षा की जब तक कि वो फ्री हो, यानी जिनसे उनको मिलना था, गांधी जी से जिनको मिलना था, जब गांधी जी फ्री हुए तब तक उसने प्रतीक्षा की। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ट्रेन। फिर उन्होंने ट्रेन, बोर्डेड मीन्स होता है चढ़ना, फिर वो ट्रेन में चढ़े, टू ऑफ देम यानी दोनों, फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। कहाँ के लिए, बिहार के पटना शहर के लिए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लायर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। वहाँ जो शुक्ला था, शुक्ला नाम का फार्मर, राजकुमार शुक्ला, तो राजकुमार शुक्ला नाम का जो फार्मर था, या बार बार जो शुक्ला मेंशन आ रहा है वो उस फार्मर के लिए आता है। तो राजकुमार शुक्ला उसको कहाँ लेके गए, एक लायर के पास, एक लायर के घर पे लेके गए, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद था, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, एंड वाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया, और भारत के भी राष्ट्रपति बने। यानी उस समय वो वकील थे पटना में, तो पटना में उन वकील जिनका नाम राजेंद्र प्रसाद था, जो बाद में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और प्रथम राष्ट्रपति थे आज़ाद भारत के। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट, क्या कहता है स्टूडेंट्स, राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन, वो शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, लेकिन जो नौकर थे उनके वो शुक्ला को जानते थे। एज ए पुअर ह्यूमन, जो क्या था, एक पुअर ह्यूमन मीन्स छोटा जमींदार, ह्यूमन मीन्स
ह्यूमन मीन्स छोटा जमींदार, छोटा सा भूमिधर, हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रोपर्स, जो पेस्टर्ड मीन्स परेशान करता रहता था देयर मास्टर, उनके मालिक को। उनका मालिक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वो कौन था? वकील था। तो जो निश्चित रूप से जो मुकदमा लड़ रहा होगा उसके वकील को परेशान करेगा। तो यहाँ थोड़ा सा जोकिंगली कहा गया है, थोड़ा सा मजाक के रूप में कहा गया कि वो जो अक्सर उनके मालिक को परेशान करता रहता था, टू हेल्प द इंडिगो शेयर, कि वो इंडिगो शेयर क्रोपर के लिए उनकी हेल्प करे, यानी इंडिगो शेयर क्रोपर्स की हेल्प के लिए जो उनके मालिक को परेशान करता रहता था, वो उस राजकुमार शुक्ला को जानते थे। सो दे लेट हिम स्टे ऑन ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप ज़मीन पर अपने साथी के साथ, उसका साथी कौन था? गांधी जी थे। हुम दे लुक टू बी अनोदर पीजेंट, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि ये कोई दूसरा किसान होगा जो इस राजकुमार शुक्ला के साथ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप दोनों यहाँ ज़मीन पर रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं जब तक कि उनका मालिक आए। बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, लेकिन देखिए यहाँ क्या कहा, गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी उनको खींचने की परमिशन नहीं दी गई। क्यों? लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से पड़ने वाली कुछ बूंदे, पोल्यूट मीन्स प्रदूषित कर दे, एंटायर सोर्स पूरे पानी के स्रोत को। हाउ डिड दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अनटचेबल, उनको कैसे पता चलता कि वो अनटचेबल नहीं है? स्टूडेंट्स, उन दिनों क्या था, इंडिया में छुआछूत की प्रथा थी। छुआछूत का मतलब जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको अनटचेबल माना जाता था और उनको शेयर नहीं करने दिया जाता था, कि जिस कुएं से जो हायर कास्ट के लोग जो पानी पीते थे या यूज़ करते थे उनको अलाउड नहीं था। तो अब उन्हें ये नहीं पता गांधी जी कौन किस जाति के हैं, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं पता आप अनटचेबल नहीं है, इसलिए हम आपको कुएं से पानी खींच करके यूज़ करने की परमिशन नहीं दे सकते थे। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी ने पहले निश्चय किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज रूट टू चंपारण, जो एंड रूट था चंपारण का, टू ऑब्टेन मोर कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन, ताकि और जो कंडीशन है उसकी इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक वो जुटा सके, क्योंकि जिस कार्य के लिए आए थे उसकी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, जो शुक्ला ने उनको दिए वो तो दिए, तो शुक्ला के अलावा जो और इन्फॉर्मेशन थी उनको कलेक्ट करने के लिए वो चंपारण से कहाँ चले गए? मुजफ्फरनगर चले, उन्होंने जाने का निश्चय किया। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी, प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी को उन्होंने एक टेलीग्राम किया ऑफ द आर्ट्स ऑफ कॉलेज जो इन मुजफ्फरनगर, जो मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, हुम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट, अब देखिए चंपारण से वो चलते हैं तो मुजफ्फरपुर ट्रेन जो होती है वो मिडनाइट में पहुंचती है। 15 अप्रैल 1970 को ट्रेन मिडनाइट में मुजफ्फरपुर में पहुंचती है। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जो प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी थे वो रेलवे स्टेशन पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days, गांधी जी वहाँ 2 दिन रुके। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मुल्कानी, प्रोफेसर मलकानी के घर में वो 2 दिन तक रुके। एक टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या बताते हैं कि इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक विलक्षण घटना थी, विलक्षण बात थी, अद्भुत बात थी इन दोज डेज, उन दिनों। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने इस बात को कमेंट किया कि ये उन दिनों एक विशेष बात थी, खास बात थी, विलक्षण बात थी। फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर की एक सरकारी प्रोफेसर के लिए टू हार्बर मीन्स होता है शरण देना, आश्रय देना। ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे किसी आदमी को, यानी उन दिनों किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा मेरे जैसे किसी आदमी को शरण देना ये विलक्षण बात थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़, छोटे छोटे शहरों में, द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स और होम रूल, क्योंकि जो इंडियंस थे, जो भारतीय लोग थे, वो अफ्रेड मीन्स डरे हुए थे, भयभीत होते थे। किस चीज़ के लिए? टू शो सिंपैथी, सिंपैथी दिखाने के लिए, यानी सहानुभूति दिखाने के लिए, फॉर एडवोकेट्स, किसको?
एडवोकेट्स को यानी वकीलों को और ऑफ होम रूल। होम रूल मीन्स होता है स्वराज, यानी स्वराज या स्वशासन का समर्थन करने वाले जितने भी एडवोकेट्स होते थे या उसको फॉलो करने वाले जितने भी व्यक्ति होते थे, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी जो था उनको शरण देता हुआ डरता था, भयभीत होता था। लेकिन जो प्रोफेसर मलकानी थे वो उन्होंने मुझे शरण दी, मैं 2 दिन उनके यहाँ रुका। इट मीन्स मिस्टर मलकानी वाज करेजियस पर्सन टू गिव शेल्टर टू महात्मा गांधी फॉर 2 days। क्या हुआ स्टूडेंट्स? द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ द हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। क्या हुआ? द न्यूज़ ऑफ गांधी जी एडवेंट, एडवेंट मीन्स होता है आगमन, गांधी जी के आगमन की खबर। एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन, और उस किस मिशन के लिए आए हैं, उनका क्या मिशन है, स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरनगर, पूरे मुजफ्फरनगर में शीघ्रता से फैल गई। एंड टू चंपारण, तो मुजफ्फरपुर और चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन की खबर और उनका मिशन क्या है, किस उद्देश्य से वो आए हैं, वो पूरे मुजफ्फरपुर और चंपारण में शीघ्रता से फैल जाती है। शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट, चंपारण से लोग जो शेयर क्रॉपर्स थे वो बिगेन अराइविंग ऑन फुट, वो पैदल पहुंचना वहाँ शुरू हो गए। एंड बाई कन्वे, और कन्वेंस टू सी देयर चैंपियन, अपने चैंपियन को देखने के लिए। जो पैदल आ सका वो पैदल, और जो किसी अपने सवारी के साधन से आ सका वो साधन से। सब लोग अपने चैंपियन को देखना चाहते हैं कि हु इज़ द पर्सन हु इज़ एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स, कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन एक ऐसा चैंपियन है जो उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए तैयार है। स्टूडेंट्स, मुजफ्फरपुर लायर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम, मुजफ्फरपुर के लायर्स को बुलाया गया गांधी जी को ब्रीफ करने के लिए। दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप इन कोर्ट, चूँकि वो जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनके मुकदमे अक्सर कोर्ट में लड़ते रहते थे। दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेज, उन्होंने अपने अपने केस के बारे में बताया महात्मा गांधी को। एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, और उन्होंने ये भी बताया कि कौन कितनी फीस लेता था। चूँकि उन किसानों के इस तरह के जो छोटे मोटे केस होते थे वो उनको कोर्ट में लड़ते रहते थे, तो वो सभी वकील एक एक दो दो करके आते हैं और अपने अपने मामले रखते हैं कि मैं ये केस लड़ रहा हूँ, मैं ये केस लड़ रहा हूँ, और वो ये भी बताते हैं गांधी जी को कि वो इसके बदले क्या फीस लेते हैं। स्टूडेंट्स, गांधी जी चाइडेड द लायर, चाइडेड मीन्स होता है डांटना, रिब्यूक इज कॉल्ड। गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, उन गरीब किसानों से इतनी बड़ी इतनी मोटी फीस लेने के लिए गांधी जी ने उन वकीलों को डांटा। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। क्या कहता है कि आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, दैट वी शुड स्टॉप डूइंग टू लॉ कोर्ट्स, कि हमें क्या करना चाहिए, इन मुकदमों को कोर्ट्स में पहुंचाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड, कहते हैं कि इस तरह के मुकदमों को कोर्ट में लड़ने से कुछ नहीं फ़ायदा होता, छोटा मोटा फ़ायदा होता है। वेयर द पीजेंट्स आर, वहाँ क्या होता है, वेयर द पीजेंट्स सो क्रश, वहाँ आप कोर्ट में लेके जाते हैं उनके किसानों के मामलों को, और किसानों को वहाँ क्रश्ड कर दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, एंड फियर स्ट्रकन, और भयभीत कर दिया जाता है, डरा दिया जाता है। लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस, इसलिए क्या कहा कि लॉ कोर्ट्स जो है वो यूजलेस है, चूँकि वहाँ अधिकारी कौन होता है, अंग्रेज होता है, वो उनको डराएगा धमकाएगा ताकि वो फिर से कोर्ट में किस केस को लेकर ना आए। तो उसने कहा कि वो कोर्ट में ले जाने वाला मामला वो यूजलेस है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कहता है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा उनका होगा, रियल रिलीफ, जो सबसे बड़ी राहत उनको मिलेगी वो क्या होगी, फॉर देम टू बी फ्री फ्रॉम फियर, कि सबसे पहले उनको भय मुक्त करना है, सबसे पहले उनको डर से आज़ादी दिलानी है, डर से मुक्त करना है। सबसे बड़ा काम ये होगा, तो सबसे पहले उनको डर से मुक्त करना है। यदि आप उनके कोर्ट में लेके जाते हैं केसेस, तो वहाँ उनको और भी डराया जाता है, वो और भी भयभीत हो जाते हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होता है। मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, मोस्ट ऑफ द अरेबल, अरेबल मीन्स होता है कृषि योग्य, कि अधिकांश कृषि योग्य भूमि चंपारण में है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज, उसको डिवाइडेड किया गया है लार्ज एस्टेट्स, यानी बड़े बड़े ज़मीनों में। एस्टेट मीन्स होता है भूमिहर या ज़मीन का बड़ा टुकड़ा, स्टेट्स कहते हैं उसको, या जागीर कह सकते हैं। तो जो छोटे जो कृषि योग्य जो भूमि थी उसको बड़ी बड़ी जागीर में
डिवाइड किया गया था चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, आउन बाई इंग्लिश मैन, जो अंग्रेजों को उनका मालिक बनाया गया था, एंड वर्क बाई इंडियन टेनेंट्स, और उसमें जो कार्य करते थे, जो खेती करते थे, वो कौन करते थे? वो इंडियन टेनेंट्स करते थे। यानी भारतीय, टेनेंट्स मीन्स होता है ठेकेदार, किराएदार, यानी ज़मीन किसकी? अंग्रेजों की। खेती कौन कर रहा है? भारतीय किसान, और वो केवल ठेकेदार हैं, यानी उन्होंने उस ज़मीन को लीज पे लिया हुआ है, ठेके पे लिया हुआ है, किराए पे लिया हुआ है। तो ज़मीन उनकी अपनी नहीं है, ज़मीन अंग्रेजों की है, और किसान उसमें केवल टेनेंट्स के रूप में, यानी किराएदार के रूप में खेती करते हैं। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और जो सबसे बड़ी कॉमर्शियल मीन्स होती है व्यापारिक खेती थी, वो कौन सी थी? वो इंडिगो थी। चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। नील की खेती सबसे बड़ी व्यापारिक खेती थी। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो यानी जो ज़मीन मालिक थे, जो जमींदार थे, कंपेल्ड मीन्स विवश करते थे, ऑल टेनेंट्स मीन्स सभी किसानों को, टू प्लांट 3/20 यानी 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स, कम से कम 15% उनकी ज़मीन पर उनको क्या करना पड़ेगा? इंडिगो करना पड़ेगा। इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी कम से कम 15% पर, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और जो टोटल जितनी भी इंडिगो की खेती होगी उनको उन्हें किराए के रूप में, लगान के रूप में, रेंट के रूप में हैंड ओवर करना पड़ेगा, अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ेगा। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के अनुबंध के आधार पर किया जाता था। लंबे समय के लिए 10-10 साल के लिए, 15-15, 20-20 साल के लिए अनुबंध किया जाता था कि जितनी भी ज़मीन कोई किसान लेगा उसका 15% पे कम से कम इंडिगो की खेती करेगा, और वो इंडिगो टोटल सरेंडर करना होगा, जितना भी इंडिगो होगा वो रेंट के रूप में करना पड़ेगा। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्न, अब प्रेजेंटली अभी हाल ही में क्या पता चला लैंडलॉर्ड्स को? उन्हें पता चला दैट जर्मनी हैज़ डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, कि जो जर्मनी है उसने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया है। सिंथेटिक इंडिगो मतलब जिसको प्रयोगशाला में बनाया जा सके, रासायनिक विधि से तैयार किया जा सके, तो उन्हें पता चला कि जर्मनी ने बना लिया है। दे देयर अपॉन ऑब्टेन एग्रीमेंट फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, इसलिए शेयर क्रॉपर से उन्होंने एग्रीमेंट किया टू पे देम कंपनसेशन, कि वो उसके लिए कंपनसेशन दें उनको, फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम 15% अरेंजमेंट, क्योंकि वो 15% पे जो उनको नील की खेती करनी थी, अब वो नील की खेती करना वो बंद कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने फोर्स किया जो फार्मर्स थे, जो टेनेंट्स थे, उनको कि वो उनके लिए कंपनसेशन दें। द शेयर क्रॉपर्स अरेंजमेंट वाज इरक्सम, अब जो शेयर क्रॉपर्स का जो अरेंजमेंट था वो इरक्सम था। इरक्सम मीन्स दुखद, परेशान करने वाला, कष्टप्रद था टू द पीजेंट्स, किसानों के लिए। एंड मैनी साइन विलिंगली, अब कईयों ने तो उन पर हस्ताक्षर कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड, और जिन्होंने इस बात का विरोध किया, प्रतिरोध किया, इंगेज लायर्स, उन्होंने क्या कर लिए? अपने अपने वकील कर लिए। द लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स, और जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या हायर कर लिए? ठग्स हायर कर लिए। ठग्स मीन्स लठैत, जो उनके बिहाफ पर गरीब किसानों को मार पीट करके, डरा करके कोर्ट में ना जाने दें और चुपचाप उनके अरेंजमेंट को साइन कर दें, तो उन्होंने क्या कर लिए? ठग को हायर कर लिया। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक, और इसी बीच जो सिंथेटिक इंडिगो की इंफॉर्मेशन थी, रीच द इलिटरेट पीजेंट, अब उन जो अनपढ़ किसान थे, उन अनपढ़ किसानों तक भी वो पहुंच जाती है। हु हैड साइन, जिन्होंने साइन कर दिया था, एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, अब उन्होंने साइन कर दिया था, उसने कहा कि अब हम अपना धन वापस चाहते हैं। तो जो इलिटरेट पीजेंट थे उनको भी इस बात की सूचना मिल जाती है कि ये समझौता इसलिए किया जा रहा है कि अब सिंथेटिक इंडिगो तैयार हो चुका है, तो इसलिए अब इंडिगो की क्रॉपिंग नहीं होगी, इंडिगो को नहीं उगाया जाएगा, इसीलिए इन्होंने कंपनसेशन वाला जो वो लेकर के आए हैं कंसेप्ट ये। तो उन्होंने जिन्होंने साइन कर दिए थे उन्होंने भी अपना धन वापस मांगना शुरू कर दिया था। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, और गांधी जी इसी बिंदु पर, इसी पॉइंट पर चंपारण पहुंचे थे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट फैक्ट्स, उन्होंने तथ्यों को एकत्रित करना शुरू कर दिया। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी, सबसे पहले वो सेक्रेटरी के पास गए। किसके? सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन थी उनका जो सेक्रेटरी था, सबसे पहले वो उसके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर, तो सेक्रेटरी क्या बताता है उनको कि वो बाहरी किसी व्यक्ति को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, यानी उनके अकॉर्डिंग महात्मा गांधी कौन है? आउटसाइडर है, और उसको मना कर दिया कि हम किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। गांधी जी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर, गांधी जी ने कहा कि वो तो आउटसाइडर नहीं, इंडियन है भैया, और इंडिया में ही वो है, तो आउटसाइडर का मतलब कोई जर्मनी से, जापान से थोड़ा ही आया है।
लेकिन उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं की। नेक्स्ट, गांधी जी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, फिर ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास गए ऑफ द तिरहुत डिवीजन के, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण डिस्ट्रिक्ट पड़ता था। अब जब उससे बात नहीं बनी, एसोसिएशन के सेक्रेटरी से बात नहीं बनी, तो फिर वो तिरहुत डिवीजन जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था उसके ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलते हैं। द कमिश्नर, गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी ने कमिश्नर को रिपोर्ट की, प्रोसीडेड टू बुली मी, और क्या कहता है, प्रोसीडेड टू बुली मी। बुली मीन्स होता है डांटना, धमकाना, धौंस दिखाना, भयभीत करना। अब देखिए उस कमिश्नर ने क्या किया, महात्मा गांधी को धौंस दिखाना शुरू कर दिया, उसे डराना और धमकाना शुरू कर दिया। एंड एडवाइज मी, और क्या कहते हैं महात्मा गांधी, एडवाइज मी फॉर विद टू लीव तिरहुत, कि तुरंत मुझे तिरहुत छोड़ने के लिए उन्होंने सलाह दी कि भाग जाइए यहाँ से, नहीं तो उसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। गांधी जी डिड नॉट लीव, लेकिन गांधी जी ने उस स्थान को नहीं छोड़ा। इंस्टीड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, बल्कि वो कहाँ चले गए, मोतिहारी चले गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो चंपारण की राजधानी थी। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम, कई सारे जो वकील थे वो उनके साथ साथ थे। एट द रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी जी, और रेलवे स्टेशन पर ए वास्ट माने एक विशाल, मल्टीट्यूड मीन्स होता है जनसाधारण, एक विशाल जनसाधारण ने महात्मा गांधी का रेलवे स्टेशन पर ग्रेटेड मीन्स स्वागत किया। ही वेंट टू ए हाउस, वो एक घर में गए, और क्या किया उन्होंने, यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर, और उस घर को उन्होंने एक हेडक्वार्टर के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस, अपनी जो जांच थी, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उनको जारी रखा। ए रिपोर्ट केम, एक सूचना आती है, दैट ए पीजेंट हैड बीन मलट्रीटेड नियर बाई विलेज, के पास के ये गांव में एक किसान को साथ क्या किया गया, ट्रीटेड मीन्स होता है गलत व्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना। कि एक रिपोर्ट आती है कि पास में ही किसी गांव को, नियर बाई विलेज, एक आसपास के किसी गांव में एक किसान को के साथ दुर्व्यवहार किया गया। गांधी जी डिसाइडेड टू गो सी एंड सी, गांधी जी ने निश्चय किया कि चलो ठीक है हम चलते हैं और देखते हैं, मिलते हैं उससे, किसान से क्या हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट टू द ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, अगले दिन क्या हुआ, वो एक हाथी के ऊपर बैठ करके उस किसान से मिलने के लिए पास के गांव के लिए चल देते हैं। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, वो बहुत दूर नहीं गए थे। व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर आउटलुक ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, जब सुपरिंटेंडेंट का, जिसको हम एसपी कहते हैं, पुलिस सुपरिंटेंडेंट, जब पुलिस सुपरिंटेंडेंट का एक मैसेंजर संदेशवाहक ओवरटुक हिम, उन्हें ओवरटेक करता है, एंड ऑर्डर हिम टू रिटर्न टू टाउन, और उन्हें आदेश देता है कि वापस शहर पहुंच जाइए, वापस शहर पहुंच जाइए। ऐसे एसपी के ऑर्डर से यदि आप नहीं मानेंगे तो हमें फिर आपको बाध्य होकर के आपके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिगो। नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर you will get in second part of this Indigo chapter. So this was the first part. Here are some important questions I mentioned. Question first, how did Rajkumar Shukla establish that he was resolute? Second question, why is Rajkumar Shukla described as being resolute? Third question, why did Rajkumar Shukla go to meet Gandhiji? Fourth question, why did Rajkumar Shukla want to take Gandhiji to Champaran? Fifth question, how was Gandhiji treated as Rajendra Prasad House? Sixth question, why do you think that the servants thought Gandhiji to be another peasant? And question 7, why did Gandhiji decide to go to Muzaffarpur before going to Champaran? Eighth, how is Gandhiji critical of the liars? And 9, how was Gandhiji able to influence liars? Give instances. And question 10, why did Gandhiji feel that taking the Champaran case to the court was useless? These are the 10 questions which are very important for the examination and cover the lesson up to where I have taught you today in this video. Students, next part of this Indigo chapter you will see in part second. Students, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनका पता चले। बिकॉज नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड,
So I should also get a chance to improve myself. वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसकी जानकारी मिल सके और वो भी अधिक से अधिक इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड लेकर के शीघ्र आता हूँ मैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।